Hello everyone, good evening. How are you all? I hope you all are doing good. Okay, so I think your day was also awesome, mind blowing. So let me introduce myself. My name is Pallavi and we are learning chemistry here. So we are going through the chapter that is chemical reactions and equation. Okay, so that is the third part of this chapter and this belongs from class 10. Okay, so we have learned what is chemical reaction, then we have learned how we can write the chemical equation, then we have learned how we can balance the chemical equation. Okay, so now we are moving forward and we are going to learn the type of chemical reaction. ठीक है, आज के सीजन में हम क्या लर्न करेंगे? केमिकल रिएक्शंस के टाइप. ठीक है, कितने टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के? सो दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द combination reaction, then we will learn about decomposition reaction, then we will learn about three type of decomposition reaction, after that displacement, and after that double displacement, and yes, oxidation and reduction. So that will be in next session. Okay, so let us start with the combination reaction. So what is combination reaction? So by name we can identify that. नाम से ही हम identify कर सकते हैं combination reaction क्या है. Combination, that means combine. Okay, so combination reaction, that means the chemical reaction in which two or more product combine together to form a single product. The two or more reactant combine together to form a single product, that is combination reaction. क्या है? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट. Okay, two or more than, sorry, not product, reactant two or more than two reactant combine to together to form single product. Form single product. That is what? That is combination reaction. Okay, so it can be represented like that. Let us see. A plus B. A and B, that is two reactant. Okay, which combine together, it gives one product, that is AB. Okay, that means these are reactant and that is product. Okay, so sorry, DUCT. Okay, product. So that is combination reaction. Okay, so we can take an example of combination reaction. So what is that? When we burn magnesium ribbon in presence of oxygen, what happened in that situation? In that situation, magnesium ribbon bond in presence of a here, it gives us magnesium oxide. So here we have magnesium ribbon, that is solid in state, plus oxygen, that is gaseous state. Combined together, we can find out MgO, which is solid in state. MgO, that is magnesium oxide. Okay, so that is the example of combination reaction. Okay, we can take another example like water. H2 O2. Okay, when two H2 plus O2 combine together, it form water. Okay, H2, that is in gaseous state, O2, that is also in gaseous state, and when they combine together, they form H2O, that is water, that is liquid state. Okay, so that is the example of combination reaction. ये सारे क्या है example? Combination reaction के हैं. ठीक है? Now we are moving towards the another type of reaction, and that is what? Decomposition. So here we can again identify this reaction by its name. इसके नाम से ही इस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे? डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स समथिंग ब्रेक डाउन. मतलब कुछ डिकम्पोज हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है. ठीक है, so what happened in this chemical reaction? In this chemical reaction, single reactant break into two or more product, that is decomposition reaction. Okay, or we can say single reactant split into two or more product, that is decomposition reaction. Okay, so here I'm writing that single reactant break or split
into two or more product. Okay, that is what decomposition reaction. Okay, okay, so how we can represent it? So it can represent it like that. Suppose AB, that is a single product. Okay, AB, that is single product which break down in form of A plus B. Okay, and we can take the another thing, A B C, that is single product, it can be break down into A plus B plus C. ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट है वो स्प्लिट होता है या ब्रेक डाउन होता है टू या टू से ज्यादा प्रोडक्ट में. सिंगल सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक डाउन होता है टू या टू से ज्यादा प्रोडक्ट में. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द कंडीशन विच रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, कुछ कंडीशंस चाहिए होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए. ओके, सो उस कंडीशन के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, तो अभी हम उसके पार्ट देखेंगे. लेट अस लर्न अबाउट दैट. So yes, type of decomposition reaction. So thermal decomposition reaction. Here we can identify it by its name. Thermal. Thermal, that means heat. Okay. Thermal, that means heat. Or decomposition, that means breakdown. So the decomposition reaction which is carried out in presence of what? Heat. Heat is required for this decomposition reaction. Okay, so that is known as thermal decomposition reaction. So we can take an example of thermal decomposition reaction, and that is what? So suppose potassium chloride. So what is the formula for potassium chloride? It is 2KClO3. That is potassium chloride. Okay, when it get heated, and the state of potassium chlorate is solid. When it get heated, it break down into 2KCl, that is potassium chloride, plus 3O2. Okay, so that is the product, and that reaction carried out in presence of heat. हीट के प्रेजेंस में पोटासियम क्लोरेट ब्रेक हुआ किसमें? पोटासियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में. ठीक है, Now we are going to take another example. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं? फेरस सल्फेट का. ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल लेंगे. अब हम फेरस सल्फेट को सॉलिड स्टेट में है, इसको जब हम हीट करेंगे ये किस में ब्रेक डाउन होगा? ये फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये क्या होंगे? गैसेस होंगे. ठीक है, ये क्या होंगे? गैसेस होंगे, और ये क्या होगा? सॉलिड होगा. ठीक है, तो इसमें ब्रेक होता है हीट के प्रेजेंस में. जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड व्हाट इज दैट? That is electrolytic decomposition reaction. So electrolytic, by the name we can identify it once again. हम इसे इसके नेम से फिर आइडेंटिफाई करेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में. इलेक्ट्रोलाइटिक, दैट इज समथिंग रिजेंबल फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से मैच करता है. ओके, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जो सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा प्रोडक्ट्स में. ओके, तो हम इसके लिए एग्जांपल क्या लेते हैं? वाटर. सो पता है वाटर को भी हम ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. कैसे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके. ठीक है, एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, लाइक कि ये हमारा क्या है? H2O है. ठीक है, एसिडिफाइड वाटर है. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें?
H2 2H2 प्लस O2 में, ओके, और ये क्या गैसियस फॉर्म में होंगे ये, ठीक है। तो when we provide electricity, supply electricity to acidified water H2O, it convert into hydrogen and oxygen gases, okay. We can take some other example like NaCl, okay, NaCl है, that is sodium chloride, common salt, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड मोल्टेन फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, मोल्टेन। जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा सोडियम टू NaCl, सोडियम प्लस Cl2 gas, and sodium that will be in solid state. So that is electrolytic decomposition reaction, and yes, that delta represents what, heat, okay, heat. Now the third type of decomposition reaction is photolytic decomposition. Photolytic, that means what, photo, now not picture, यहाँ picture नहीं है, photo, यहाँ photolytic से क्या मतलब है, light, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को हम कुछ दिनों के लिए लाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, ये डिकम्पोज होके सिल्वर बना देता है और क्लोरीन गैस रिलीज होता है, ठीक है। पहले जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है, लेकिन जब कुछ टाइम तक उसको लाइट के प्रेजेंस में छोड़ेंगे क्या होगा, उसका कलर ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ग्रे में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये वो ग्रे कलर सिल्वर का कलर होगा, ठीक है, और जो व्हाइट कलर था वो सिल्वर क्लोराइड का था, ओके। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दैट, 2AgCl, ठीक है, ये व्हाइट कलर में है। इसको जब हम लाइट के प्रेजेंस में छोड़ेंगे, व्हाट होगा, कुछ टाइम के बाद ये 2Ag दैट मीन सॉलिड में होगा और इसका कलर ग्रे हो जाएगा व्हाइट से, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगा, ठीक है। वैसे एग्जांपल हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी ले सकते हैं, जिसमें कि अगेन सिल्वर ब्रोमाइड भी व्हाइट कलर का होगा, लेकिन जैसे सॉरी पेल येलो कलर का होगा, नॉट इन व्हाइट कलर, सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का होगा, ओके। लेकिन जैसे हम इसको लाइट के प्रेजेंस में कुछ टाइम तक, कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वापस से वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन गैस तो रिलीज हो गया और जो ग्रे कलर है किसका है, सिल्वर का है, ओके। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ photolytic decomposition reaction. Wait. Okay, so now we are moving towards the third type of chemical reaction. And what is that? So that is displacement reaction. Displacement, that means something replaced here. So something is pissy here, ठीक है? इसमें क्या होगा, displacement reaction में क्या होगा, जो less reactive होगा वो replace कर दिया जाएगा किससे, जो ज्यादा reactive element होगा उससे, ठीक है। सपोज टू बॉयज आर फाइटिंग, दो लड़के फाइट कर रहे हैं, एक क्या है बहुत स्ट्रांग है, दैट मीन्स मसल एंड ऑल, दूसरा क्या है लीन एंड थिन, बहुत वीक है, ठीक है। दोनों के बीच में फाइट होगा, कौन विन जीतेगा वो फाइट, ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रॉन्गर है वो जीतेगा, तो यहाँ वो जीतेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वीक एलिमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन अगर उनके बीच में होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो वीकर वन होते हैं उसको रिप्लेस करके स्ट्रॉन्गर वन उसका पोजीशन ले लेता है, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो हियर वी कैन से द मोर रिएक्टिव एलिमेंट replace less reactive element from the chemical reaction, okay.
और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये ए बी है, ठीक है, ए बी जो कंपाउंड बनाया है, ठीक है, ये कंपाउंड है, और थर्ड क्या है, सी है। सी है वो ए से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, सी ए से ज्यादा रिएक्टिव है। सी क्या करेगा, ए का प्लेस ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ए को रिमूव कर देगा रिएक्शन से, और बी के साथ कंबाइन होके बी सी बनाएगा, सी बी बना लेगा, और ए क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्यों, सॉरी, नॉट एरो साइन, विच, ओके, सो हियर इट विल बी प्लस साइन। तो ये क्या होगा, सी बी प्लस ए बनाएगा, ए रिप्लेस होगा किसके थ्रू, सी के थ्रू, सी रिप्लेस करेगा ए को, ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो लेट अस सी द रिएक्टिविटी सीरीज। हम अभी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या है, ये के किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का होता है, Na किसका होता है, सोडियम का, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सारे क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सब क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव है। और जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सारे क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये बहुत कम रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, दैट इज लेस रिएक्टिव, और वी कैन से नॉन रिएक्टिव। ओके, नॉन रिएक्टिव मेटल भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे अगर कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो सपोज वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में है, एक्वस दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और एक दूसरा क्या है एलिमेंट, जिंक है, ये भी, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये बताओ कि जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कॉपर कहाँ है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है, और जिंक कहाँ है, यहाँ है। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर विल ऑक्युपाई द स्पेस ऑफ जिंक। ओके, तो क्या करेगा, सॉरी, जिंक विल ऑक्युपाई द स्पेस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिमूव कर देगा, और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 एक्विस, और रिमूव क्या हुआ है, कॉपर, दैट इज सॉलिड। So that is the example of what? Displacement reaction. Okay. यहाँ कौन displace हुआ है, replace हुआ है, copper. We can take another example. Suppose the another example of copper chloride. CuCl2. ठीक है, aqueous form में है. Pb है, that means lead है अपने पास solid. जब ये रिएक्ट करेंगे, क्या होगा इस केस में, कॉपर हम देखते हैं यहाँ पे है अगेन, और लीड कहाँ पे है, ये लीड रहा अपना, ठीक है। तो लीड क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो व्हाट हैपन हियर, अगेन कॉपर विल रिप्लेस बाय लीड, ओके, एंड द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट विल बी PbCl2 plus Cu, solid aqueous। ओके, तो ये क्या रहा अपना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरिड आउट टू टू टाइम्स, बट हाउ टू टाइम्स, टू टाइम्स कैसे कैरिड आउट हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है कि टू कंपाउंड है, सपोज वी हैव टू कंपाउंड, एंड इन दैट केस वन compound which is made up of combination of when two or more element combine together they form compound, ठीक है, वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, सपोज दो कंपाउंड है, उन कंपाउंड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी एफिनिटी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स के लिए ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में आयन एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, आयन एक्सचेंज कर लेंगे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बाय exchange of ion between the compound. Okay, so the chemical reaction where exchange, so
two compound reacts by an exchange of ion to form two new products. ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज ये ए बी है और ये रिएक्ट किससे करता है? सी डी से करता है, ठीक है। एक ए बी है, एक सी डी, ये क्या है? दो कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ जो ए को है वो सी से ज्यादा एफिनिटी है, दैट मीन्स ए क्या है? प्लस है, बी क्या है? माइनस आयन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इट्स नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? ए को सी से ज्यादा एफिनिटी हुआ, ठीक है, और बी को डी से ज्यादा एफिनिटी हुआ, तो क्या होगा? यहाँ पे आयन एक्सचेंज होके ये क्या बना लेंगे? ए सी प्लस बी डी बना लेंगे। ये क्या होगा? कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। सपोज सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, एक्विस फॉर्म में है, ओके। ये क्या करता है? सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड से रिक्वेस्ट करता है, सॉरी, रिएक्ट करता है। ये भी एक्वस फॉर्म में है। Ag क्या है? प्लस है, नाइट्रेट क्या है? माइनस है, सोडियम क्या है? प्लस है, क्लोरीन क्या है? माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सिल्वर को ज्यादा एफिनिटी है क्लोरीन से, और यहाँ सोडियम को ज्यादा नाइट्रेट से है, तो ये क्या करेंगे? आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये आपस में आयन एक्सचेंज करके क्या बना लेंगे? AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ओके, प्लस Na सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, एक्विस फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ आयन एक्सचेंज हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड का, BaCl2, एक्वस फॉर्म है, ठीक है। ये किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम सल्फेट से, Na2SO4, ये क्या है? सोडियम सल्फेट है, इससे रिएक्ट करेगा। क्या होगा? यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज होंगे, Ba प्लस Cl माइनस Na2 प्लस SO4 माइनस, तो यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज होगा, और ये क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, BaSO4, ये क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। और फिर ये क्या बनाएगा? ये सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके, ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड एक्विस फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है? ये किसका एग्जांपल हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में लर्न करेंगे। और नेक्स्ट सेशन क्यों हमने लिया उसके लिए? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, then we will learn about the effect of oxidation and reduction reaction in our daily life, and then we will learn that how we can prevent from the redox reaction, okay, oxidation and reduction reaction, okay. So that we'll learn in our previous class. So I hope everything is clear for today. So bye everyone, take care, keep learning, keep smiling, good night.